Hello everyone. Our today's topic is job safety analysis. So आज का हमारा विषय है job safety analysis. So what is a JSA? JSA क्या है? So the definition says that it is a method for systematically identifying and evaluating the hazards associated with a particular job or task, and then identifying the control measure for loss prevention, and also authorizing the concerned person with responsibility of implementing and monitoring the safety during the activity being executed. So it is a systematic process. Means when you are going to identify any hazard, then you need to break the job into several steps, and then each steps needs to be evaluated, and under that evaluation you need to identify what are the hazards, then what are the control measures to control those hazards and risk, and then who is responsible. So it is also very important when we are going to identify a hazard, then there is someone has to be assigned that particular job to ensure that hazard is properly controlled. So we need to identify someone also. So all this thing comes under the JSA, and the ultimate concept behind JSA is to identify the hazard involved in the job, implement the control measure, and then ensure that it is properly implemented so that there is no loss during the execution of the job. So ultimately loss prevention. अब जब हम बात करते हैं JSA की, तो हमें समझना पड़ेगा ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है. हम किसी भी काम को करने से पहले उस काम को कई सारे स्टेप्स में हमें ब्रेक करना है. मैं आपको एक एग्जांपल भी शेयर करूंगा अपकमिंग स्लाइड्स में. हमें किसी भी काम को स्टेप्स में ब्रेक करना है, और जब हम किसी भी स्टेप को ब्रेक करते हैं तब हमें हर स्टेप्स को इवेल्युएट करना है कि उसमें क्या खतरा है, उस पर्टिकुलर स्टेप में क्या खतरा है, और फिर किस कंट्रोल मेजर को लगाने से हमें उस खतरे से बच पाएंगे हम, या उस खतरे को हम लोग एलिमिनेट कर पाएंगे या रिड्यूस कर पाएंगे. तो ये इवैल्यूएशन के दौरान हमें देखना पड़ेगा. और इसके साथ में हमें ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि एक कंसर्न्ड पर्सन, अब फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं हम वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, तो वेल्डिंग से जो आग के गोले निकलते हैं, स्पैटर्स निकलते हैं, तो ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वेल्डर की होती है कि वो उस चीज का ध्यान रखे कि स्पैटर्स जो है ऐसी जगह ना गिरे जहां पे आग लगने का समस्या हो सकता है. सो इट इज द वी नीड टू आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑल्सो. तो हम उस खतरे को समझेंगे और किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे उसे कंट्रोल करने के लिए. तो दिस इज ऑल अबाउट द जेसे. जेसे यही कहता है काम को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उस एक्टिविटी को सब एक्टिविटीज में डिवाइड कीजिए, और फिर हर एक्टिविटीज के खतरे को समझिए, इवेल्युएट कीजिए और कंट्रोल मेजर इम्प्लीमेंट कीजिए. नाउ व्हाई वी शुड कंडक्ट अ जेएसए. So from the previous slide we have come to know that the job safety analysis is a task analysis technique in which any task is broken down into several steps, and hazards involved in each task are identified and control measures are implemented. So the concept behind JSA is to ensure that before we start any activity, we need to identify what are the inherent hazards involved in the job, and then implement systematic control measures to eliminate or reduce those risks. Now, JSA is a part of the action prevention program, and JSA also helps the execution people or the engineers to understand what are the requirements to carry out the job in the safe manner, whether they need to train the workers, or do they need any specific equipment, or do they need any specific job, any specific PPEs for the job. So all these things are easily identified when a JSA is being prepared.
जब हम JSA बनाते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम काम के होने वाले खतरों की पहचान करें और उनकी रोकथाम करते हुए उन खतरों को एलिमिनेट करें या खतरों को रिड्यूस करें ताकि काम हमारा सेफ तरीके से हो जाए। और जब हम JSA बनाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली किसी भी काम को कई सारे स्टेप्स में ब्रेक करते हैं, और जैसे ही हम काम को कई स्टेप्स में ब्रेक करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि किस स्टेप की क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, अगर हम कोई काम करने वाले हैं और उस काम में रिस्क है तो लोगों को ट्रेनिंग करनी जरूरी है, उन्हें अवेयरनेस करना जरूरी है कि उस काम में क्या खतरा है। तो इस प्रकार से JSA बनाने से हमें किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द प्रिवेंशन प्रोग्राम। जब हम जॉब सेफ्टी एनालिसिस करते हैं तो उस समय हमें खतरे की जानकारी होना बहुमूल्य है। अगर खतरे की जानकारी है और हम उसके ऊपर सही कार्रवाई ना किए तो फिर वो किसी काम का नहीं है। इसलिए खतरे की जानकारी होना और सही तरीके से खतरे को खत्म करना या उसको रिड्यूस करना, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम काफी दिनों से काम करते हैं और काफी एक्सपीरियंस हो जाता है हमें। और कई बार जब हम रेगुलर एक ही काम करते हैं तो हम उसके अंदर शॉर्टकट के कारण हम कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनका कोई खास वैल्यू नहीं होता है, तो हम उसे ओवरलुक करते हैं, हम उसे ध्यान नहीं देते हैं। और तब हमारा एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि चलो ये काम हम काफी सालों से कर रहे हैं और हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार की मानसिकता को बदलाव करना बहुत जरूरी है। जब भी हम नए खतरे के बारे में जानकारी ले या किसी पुराने खतरे के लिए हम JSA बनाए तो हमें हमेशा खुले विचारों से उसके ऊपर काम करना चाहिए और हर एक एस्पेक्ट को हमें समझना चाहिए और उसके लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हाउ डू आई कंडक्ट JSA? अब सवाल है कि हम JSA कैसे करें या JSA की एनालिसिस कैसे करें। तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द जॉब और द टास्क टू बी एनालाइज। पहले जिस एक्टिविटी के लिए JSA बनाना है, पहले उस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करें। देन ब्रेक द जॉब और द टास्क इनटू की कंपोनेंट्स। अब जो हमारा एक्टिविटी है, जो टास्क है, उसको हम मेन स्टेप्स, ऐसा नहीं कि किसी एक एक्टिविटी को हम अनगिनत स्टेप्स में ब्रेक कर दे। हम जो उसके मेन स्टेप्स होते हैं जिनके अंदर खतरा या जोखिम है, हम उन सब स्टेप्स में उसे हम टास्क को डिवाइड करेंगे। देन आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स फाउंड इन ईच की कंपोनेंट्स। और फिर हर एक स्टेप्स के अंदर जो खतरे हैं उसको हम लिख के रखेंगे या हम उसे आइडेंटिफाई करके रखेंगे। देन आइडेंटिफाई वे टू एलिमिनेट और कंट्रोल दिस हैजर्ड्स। फिर इसके बाद हम हर उस खतरे के बारे में सोचेंगे कि कैसे हम इस खतरे को खत्म कर दें जड़ से, और अगर हम इसे जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं तो कैसे इसके इफेक्ट को हम कम से कम कर दें। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसके कंट्रोल मेजर्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। एलिमिनेट द हैजर्ड और इंस्टॉल कंट्रोल्स। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द हैजर्ड आइडेंटिफाइड एंड स्टेप्स टेकन टू एलिमिनेट और कंट्रोल देम। अब ये सारा जो हम एनालिसिस किए हैं, अब हम इसे डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए। एंड पीरियोडिकली असेस कंट्रोल्स टू इंश्योर दे आर वर्किंग करेक्टली। और समय समय पे जिस कंट्रोल्स की हम चर्चा किए हैं या जिस कंट्रोल्स की हमने अपने डॉक्यूमेंट में लिखित में रखा है, जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो समय समय पे हम उसकी इंस्पेक्शन करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि जिन कंट्रोल्स को हमने लगाया क्या वाकई में ही वो काम कर रहा है। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो फिर हम उसकी रूट कॉज एनालिसिस समझेंगे करेंगे और उन तथ्यों को समझेंगे जिस कारण हम अपने एम को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। अब हाउ डू आई आइडेंटिफाई द जॉब फॉर द एनालिसिस। अब हम कैसे एनालाइज करें कि हमें किस एक्टिविटी के जॉब सेफ्टी एनालिसिस करना है। इसके लिए हमें अपने कंपनी के पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे, इंसिडेंट रिकॉर्ड्स,
या नियर मिस रिकॉर्ड्स। अगर किसी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा नियर मिस रिपोर्ट हुआ है तो उस एक्टिविटी का जॉब सेफ्टी एनालिसिस करना जरूरी होता है। इसके साथ हमें ये भी देखना है कि ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसके अंदर बहुत हाई पोटेंशियल है आग लगने की या एक्सप्लोजन्स होने की या गैस या किसी प्रकार का केमिकल गैस रिलीज होने का या ऐसा कोई एक्टिविटी जिसमें इक्विपमेंट फेलियर होने का, खास करके जब हम किसी इक्विपमेंट का एरेक्शन करते हैं तो ऐसे एक्टिविटीज का हमें जॉब सेफ्टी एनालिसिस करना जरूरी होता है। या ऐसे भी एक्टिविटीज जिसके अंदर ह्यूमन एरर्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ में हम उन जॉब्स के भी जॉब सेफ्टी एनालिसिस करते हैं जो पहले बार किया जा रहा है या ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसमें पहली बार किसी नई मशीन से काम की जाने वाली है या ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो कभी कभी किया जाता है। तो इन सभी एक्टिविटीज का जॉब सेफ्टी एनालिसिस करना जरूरी होता है। इसके साथ में हम उन सब एक्टिविटीज के लिए भी जॉब सेफ्टी एनालिसिस करेंगे जिसमें सेफ्टी परमिट की रिक्वायरमेंट्स होती है या परमिट टू वर्क की रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट या हॉट वर्क परमिट या एक्सकवेशन परमिट। तो इन तरह से तो इस प्रकार से हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस जॉब का जॉब सेफ्टी एनालिसिस करना जरूरी है। अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा कि जेएसए बनाने समय या प्रिपेयर करने समय हमें किन डेटास को रेफर करना है ताकि हमें पता चल सके किन किन एक्टिविटीज का हमें जॉब सेफ्टी एनालिसिस बनाना अनिवार्य है। इसके साथ में हम कुछ और भी डेटास को रेफर कर सकते हैं, जैसे कि आपके कंपनी के एक्सीडेंट रिपोर्ट्स के, आप किस एक्टिविटी में कितने एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं उस हिसाब से हम उस एक्टिविटी को कवर कर सकते हैं अपने जेएसए में। इसके साथ में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम्स को भी स्टडी करके हमें पता चल सकता है कि किस एक्टिविटी में कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं जिस कारण वर्करों के साथ हताहत हुआ है और उन्होंने क्लेम किया है कंपनी के ऊपर। इसके साथ में अब जब आपकी कंपनी किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज को करती है या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन काम करती है या कंस्ट्रक्शन का काम करती है तो वो किसी ना किसी ट्रेड एसोसिएशन के साथ अटैच्ड होते हैं। तो हर ट्रेड एसोसिएशन जो है मंथली या वीकली या ईयरली कुछ डेटाज पब्लिश करते हैं। उन डेटाज को भी पढ़ने समय पता चल सकता है कि कितने तरह के एक्सीडेंट्स हुए हैं उस तरह के इंडस्ट्रीज में, और उससे भी हम लोग अपने एक्टिविटी को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें किन एक्टिविटीज को चयन करना है ताकि हम उसका जॉब सेफ्टी एनालिसिस बना सके। जेएसए बनाने समय सबसे पहले हमें उस एरिया का वॉकअराउंड करना जरूरी होता है जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं। और जब हम वॉकअराउंड के लिए जाएं तो हमें धैर्य से सभी वर्कर को काम करते देखना है और हमें ये समझना है कि वर्कर किस जगह पे गलती कर सकता है और ऐसा क्या जगह है या ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें वर्कर खतरे के साथ एक्सपोज हो रहा है या वर्कर खतरे के संपर्क में आ रहा है। इसके साथ में हम वर्करों से बात भी कर सकते हैं और उनकी मुश्किलों को समझ भी सकते हैं। और आप ये जान जाइए कि जो वर्कर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं जो काम अपने हाथों से करते हैं उनसे बेस्ट आपको कोई नहीं बता सकता है कि उस काम में किस बात का खतरा है। नाउ मेकिंग स्टाफ पार्टिसिपेट। सो जैसे इज टीम वर्क, जैसे एक टीम वर्क है। इसमें जब भी हम जैसे बनाएं तो ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि इसकी ओनरशिप किसके पास रहेगी और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे तो वो ओनरशिप सब में बढ़ती है और इस प्रकार से आपका जैसे स्ट्रांग भी होता है, स्ट्रेंथन भी होता है और उसकी एप्लीकेशंस इजी हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप जैसे बनाएं आप ध्यान रखें कि उसमें जो फ्रंटलाइन इंजीनियर्स है, सुपरवाइजर्स है, वो पार्टिसिपेट करें। इसके साथ जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स के जो फॉरमैन है
जो वर्कर्स के जॉब सुपरवाइजर हैं उन्हें भी आप इन्वॉल्व कीजिए, फिर ऑपरेटर्स को इन्वॉल्व कीजिए, फिर खुद भी इन्वॉल्व रहिए, फिर सेक्शन इंचार्ज को इन्वॉल्व कीजिए। तो जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं उतने ही ज़्यादा क्लैरिटी से आप जैसे बना सकते हैं। और इसके साथ में जो ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत क्लियरली इम्प्लीमेंट कर हो पाएगी। और इसकी एक और भी फायदे हैं कि जितने ज़्यादा टेक्निकलिटीज़, अब जितने भी सिविल के भी लोग अगर आते हैं उसमें, अगर मानिए कि मैकेनिकल के भी लोग हैं, तो जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं उतना ज़्यादा जो पॉइंट ऑफ व्यू है एनलार्ज हो जाता है और टेक्निकलिटीज़ बहुत इजीली ब्रेकिंग द जॉब इनटू की कंपोनेंट्स। अब हमारा टारगेट है कि समझना कि किसी भी काम को हम की कंपोनेंट्स में डिवाइड करें जब हमको जेएसए बनाना है। तो जो की कंपोनेंट्स हो ध्यान रखिए कि 10 पॉइंट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि 10 पॉइंट ज़्यादा हो तो फिर कंबसन हो जाता है और जो एग्जैक्ट चीज़ों को हम चाहते हैं बाहर आना हमारे जेएसए, वो सही से बाहर नहीं आ पाता है और टू लेंदी होने से फिर लोग उसे पढ़ेंगे भी नहीं। इसीलिए हम जनरली ध्यान यही देंगे कि हम अपने जेएसए को टू द पॉइंट रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सीढ़ी पे सीढ़ी लगाकर कहीं से लाइट बल्ब चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं इस पॉइंट को, तो हमारा खतरा क्या है उसमें? सीढ़ी पे गिरने का खतरा है, दूसरा बिजली का झटका लगने का खतरा है, और तीसरा सीढ़ी को लगाते समय सीढ़ी स्किड होने का खतरा है। तो इसमें देखिए, अगर एक एक्टिविटी जिसमें हम सीढ़ी लगा के बल्ब खोलते हैं या बल्ब चेंज करते हैं लाइट बल्ब, तो हम उस काम को एटलीस्ट मिनिमम 3 से 4 स्टेप्स में इजीली हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट ऐसा ही होना चाहिए कि हम किसी भी एक्टिविटी को इजीली 10 पॉइंट में तोड़े या उससे कम में तोड़े, उससे ज़्यादा ना जाए। अब देखिए, इस स्लाइड में मैंने लिया है चेंजिंग अ लाइट बल्ब एज एन एक्टिविटी। अब टू मच डिटेल्स में देखिए, get ladder from the store, get new light bulb from store, carry ladder and light bulb to the work area, place ladder under light to be changed, ensure light switch is in off position, climb ladder, remove light cover, twist light bulb in a counterclockwise direction until it is free of the socket, remove old light bulb, insert new light bulb into socket, turn in a clockwise direction until tightened, replace light cover, descend ladder, carry ladder back to storage। अब देखिए इसमें टू मच डिटेल्स। अगर हम जैसे बनाना है जिसमें हमें एक लाइट बल्ब को चेंज करना है, तो ये सारे एक्टिविटीज जनरली एक आदमी को करने पड़ते हैं जब वो एक लाइट बल्ब को चेंज करने जाए। लेकिन हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सभी स्टेप्स बताए गए हुए हैं इनमें किस में ज़्यादा खतरा है, और जिन स्टेप्स में खतरा है हम उसी स्टेप्स को जेएसए में कंसिडर करना है। अननेसेसरी स्टेप्स को हमें नहीं लेके चलना है। अब देखिए जैसे कि मिडिल कॉलम है, टू लिटिल डिटेल्स। ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं होने चाहिए और कम डिटेल्स भी नहीं होने चाहिए। ज़्यादा कम डिटेल्स होंगे तो मे भी हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर जाए, और ज़्यादा डिटेल्स होने से वो कंबर्सन और टू लेंदी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसलिए हमें राइट अमाउंट ऑफ डिटेल्स ही डालना है। अब जैसे कि टू लिटिल डिटेल्स में क्या है, गेट अ लैडर एंड न्यू लाइट बल्ब, चेंज द बल्ब, पुट लैडर अवे एंड थ्रो आउट ओल्ड लाइट बल्ब। लैडर को लाइए, अब बल्ब को चेंज कीजिए, अब बल्ब चेंज होने के बाद सीढ़ी को हटाइए और पुराने बल्ब को फेंक दीजिए। ये ये जो डिटेल्स है ये काफी छोटा हो गया। राइट अमाउंट डिटेल्स कितना होना चाहिए, अब देखिए आप सीढ़ी को लाइए और नए लाइट को चेंज कीजिए। लाइट चेंज करने से पहले बिजली के स्विच को ऑफ कीजिए, लैडर को सही जगह पर लगाइए और लैडर के सहारे बल्ब को चेंज कीजिए और वापस लैडर को स्टोर में रख के चले आइए। तो ये जो डिटेल्स है ये परफेक्ट डिटेल्स है अगर हमें जैसे बनाना है। अब आपके स्क्रीन पे
जैसे बनाने का एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जिसमें डेट ऑफ एनालिसिस दिख रहा है, जिस डेट को हम एनालिसिस करने वाले हैं। देन जॉब hazard एनालिसिस, पीपल हु पार्टिसिपेटेड, जैसे बनाने समय किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनका डिटेल्स डालना, और जो जॉब एक्टिविटी है उसको मेंशन करना, और उसके बाद उस एक्टिविटीज के स्टेप्स को मेंशन करना, प्रति स्टेप्स में क्या खतरे हैं उसे मेंशन करना, और उन खतरों को कंट्रोल करने के लिए, आइदर एलिमिनेट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं हमें वो बताना है, और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें बस वो दर्शाना है। तो आपका जो जैसे है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो 4 कॉलम का है। लेकिन कई बार क्या होती है कि काफ़ी सारी कंपनियों को काफ़ी इंफॉर्मेशन निकालना होता है एक ही जैसे से, तो वो इसमें कॉलम्स बढ़ाते हैं और उसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। मैंने इस टेम्पलेट के अंदर एक जैसे बना के दिखाने की कोशिश किया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि जैसे बनाने समय हमें कैसे बनाना है, किन बातों का ध्यान रखना है। एक मैंने एक्टिविटी लिया जैसे कि एक्सकवेशन। अब देखिए जॉब स्टेप्स मैंने 2 ही स्टेप्स लिए हैं, और भी 2-4 स्टेप्स हो सकते हैं। जैसे कि हमें मैकेनिकल एक्सकवेशन करना है, तो मैकेनिकल एक्सकवेशन जेसीबी के द्वारा ही होगा। तो जेसीबी मूवमेंट फ्रॉम पार्किंग एरिया टू एक्सकवेशन लोकेशन, जब हम जेसीबी को पार्किंग एरिया से जिस जगह पे एक्सकवेशन करना है वहां तक ले जाते हैं, जो सबसे बड़ा खतरा होता है रोड एक्सीडेंट का होता है जेसीबी से, क्योंकि जेसीबी बहुत बड़ा होता है और जो ऑपरेटर होता है या ड्राइवर होता है, कभी कभार उसके पास काफी सारे ब्लाइंड पॉइंट्स होते हैं और उन ब्लाइंड पॉइंट्स को वो सही से देख नहीं पाता है। इसलिए उसके साथ एक फ्लैगमैन का होना जरूरी है, क्योंकि फ्लैगमैन रहने से वो उसे डायरेक्शन दे सकता है, उसे हेल्प कर सकता है समझने में, और रोड क्लियरेंस भी करा सकता है। देन ड्राइवर की डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग होनी चाहिए। ड्राइवर को पता होना चाहिए क्या खतरे हैं उस एरिया में, ताकि वो अपनी ड्राइविंग सही तरीके से करे। फिर व्हीकल की ओवर स्पीडिंग नहीं होनी चाहिए, एक स्पीड लिमिट होना चाहिए जिस स्पीड लिमिट पे ऑपरेटर को या ड्राइवर को व्हीकल ड्राइव करना है। इसके साथ जब हम व्हीकल स्टार्ट करें उसके पहले उसकी सही तरीके से इंस्पेक्शन होनी चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्राइवर की। इसी प्रकार से जब हम एक्सकवेशन कर रहे हैं पिट का, या जब हम मिट्टी को निकाल रहे हैं खुदाई करके, तो इस दौरान सबसे बड़ा खतरा होता है जेसीबी के बकेट से चोट लगने की, क्योंकि बकेट रोटेट करता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, हमें वर्क एरिया को बैरिकेड करना है ताकि उस वर्क जोन में कोई दूसरा ना आ सके। इसके साथ ही साथ हमें सेफ्टी सैनिटाइजर्स लगाने हैं काम के आसपास एरिया में, ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर क्या खतरा है, क्या काम चल रहा है। और साथ ही साथ उस एरिया का सुपरविजन भी होना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जॉब सुपरवाइजर की और सेफ्टी सुपरवाइजर की जो वहाँ पे डिप्यूटेड है। इसके साथ ही साथ एक्सकेवेशन के दौरान पिट के जो वॉल्स होते हैं उसके कोलैप्स होने के खतरे भी होते हैं, और केविन्स भी होते हैं। केविन्स माने जो अंदरूनी हिस्सा होता है ढह जाता है मिट्टी का, जिसके कारण जो ऊपरी एज होता है मिट्टी का वो गिर जाता है अंदर की तरफ, इसे हम केविन्स कहते हैं। Excavated soil should be kept away from the edge and shoring of the pit। ये इसका प्रिकॉशन मेजर है, कंट्रोल मेजर है। जो अब हम खुदाई करते हैं तो मिट्टी को हमें एज पे नहीं रखना है, कम से कम 1 से 1.5 मीटर दूरी पे रखना है, क्योंकि अगर एज पे मिट्टी रखते हैं तो मिट्टी के जो वजन होता है उस वजन से भी जो एज होते हैं केव्स के या पिट के, वो टूट के गिरने का खतरा बना रहता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जॉब सुपरवाइजर की, इंजीनियर की, और सेफ्टी सुपरवाइजर का काम है उसे मॉनिटर करना और चेक करते रहना कि नियम का पालन हो रहा है कि नहीं। इसी दौरान जो दूसरा एक हैजर्ड है वो है फॉल ऑफ अ पर्सन इनसाइड द पिट। काम के दौरान जो लोग ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, गड्ढे से बाहर काम कर रहे हैं, पिट से बाहर काम कर रहे हैं, खतरा और जोखिम रहता है कि काम के दौरान वो पिट के कोने से अंदर की तरफ गिर ना जाए, क्योंकि गिरने से काफी बड़ा चोट हो सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। इसके लिए क्या करना है, हमें एक फिजिकल बैरिकेशन लगाना है
जो कि आपका स्कैफोल्डिंग पाइप से जो एमएस पाइप होते हैं स्कैफोल्डिंग के, उससे भी लगाए जा सकते हैं, या दूसरे हार्ड बैरिकेशंस एज पर द रिक्वायरमेंट आप लगा सकते हो। और आसपास में सेफ्टी सैनिटाइजर इंस्टॉल करने हैं, और सुपरविजन बनाना है, बढ़ाना है, और टूल बॉक्स स्टॉक भी करना है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग इस खतरे से बच सकते हैं, और ये भी जिम्मेदारी जॉब सुपरवाइजर की या जॉब इंजीनियर की ही होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अपना जेसे तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो बड़ा सिंपल और इजी तरीके से हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हम काम शुरू करते हैं तो उसके पहले हमें अपने वर्करों को एक इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, और उस इंस्ट्रक्शन के दौरान हम इस जेएसए को रेफर कर सकते हैं।